Hi everyone, I welcome you all again in this video lecture series on topic number system. So if you try to recall, in the last video we have discussed how to find LCM and SCF of a given set of numbers effectively. So in today's session, we are going to look at some important properties of LCM and SCF which are going to be very crucial for the solving of questions. So let us start with the first property. For any given set of numbers, the LCM is always the multiple of SCF. तो यू ऑलरेडी नो व्हाट मल्टीपल इज। मल्टीपल एक वो नंबर होता है जो डिवाइड होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? द प्रॉपर्टी सेज कि जब जब हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, व्हाट वुड यू रियलाइज कि एलसीएम एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल एक वो नंबर होता है जो कंप्लीटली डिवाइड होता है। हम बोल रहे हैं कि एलसीएम हमेशा मल्टीपल होता है एचसीएफ का। इसका मतलब एलसीएम का वैल्यू एचसीएफ के वैल्यू से हमेशा डिवाइड होगा। यानी कि जब तुम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ऑल्सो आई कैन से द सेम थिंग एज, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सिंस एलसीएम इज द मल्टीपल, इट मींस एचसीएफ मस्ट बी द फैक्टर ऑफ एलसीएम। डिवाइड होने वाले नंबर को हम मल्टीपल बोलते हैं और डिवाइड करने वाले नंबर को हम फैक्टर बोलते हैं। Let us try to understand this property with the help of an example. Let's say I have two numbers. So let's pick 12 and 15. इन दो numbers के लिए if I ask you to find out LCM and SCF, तो तुम बोलोगे सर इन दो numbers का LCM होता है 60 and SCF है 3, right? तो अगर ये प्रॉपर्टी में फॉलो करूं तो प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर मैं LCM की वैल्यू को SCF से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि एलसीएम का आंसर इज अ मल्टीपल और मल्टीपल एक वो नंबर होता है जो कंप्लीटली डिविजिबल होता है। सो यू कैन क्रॉस वेरीफाई, क्या एलसीएम का आंसर डिविजिबल है? यस, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। दिस इज प्रॉपर्टी वन। तो if you read the second property, it says for any set of two numbers, now this property is only applicable जिस set में दो ही numbers हैं, the product of LCM and SCF is always equals to the product of two numbers. So if I assume the two numbers as A and B, let's say there are two numbers A and B, जिसके लिए हमने LCM and SCF calculate किया as LCM and SCF. So as per this property, the product of LCM and SCF is equals to the product of the two numbers. So if I apply this property, so let's pick any two numbers. So let me pick 15 and 18. These are टू नंबर्स। तो अगर मैं इनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करूंगा तो एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 90 and SCF is 3. And if I plug in the values here, so LCM is 90, SCF is 3. This should be equals to the product of two numbers 15 and 18, and you can cross verify whether I get the same answer or not. So in both cases, you get your answer as 270. So this property holds true for any set of two given numbers. The product of LCM and SCF is always equals to the product of two numbers. Now if you're thinking, सर अगर किसी सेट में दो से ज्यादा नंबर होंगे तो क्या हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? लेट्स से टुमारो यू गेट दिस सेट, और अगर तुम इस प्रॉपर्टी को इस गिवन सेट के लिए अप्लाई करोगे, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दो सेट which contains only two numbers. So I hope the second property is also clear. Now let us understand how to find LCM and SCF of fractions. In order to find LCM of fraction, so let's say मेरे पास तीन फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। द थ्री फ्रैक्शनल वैल्यूज आर a upon b, second fractional value is c upon d, and third fractional value is e upon f. तो अगर मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है किसी भी फ्रैक्शन का, तो मैं न्यूमरेटर वैल्यूज का, लेट अस आइडेंटिफाई द न्यूमरेटर वैल्यूज। ये रहे न्यूमरेटर वैल्यूज। So I'll find LCM of numerator values, while for denominator values we would calculate SCF. So the values written in denominator, for them you have to calculate SCF.
So this is how we find out LCM of a fraction. Now for the same fractional values, if I want to find out SCF, the change would be, so I want to find out SCF of the same fractional values. The change would be that this time I'll calculate SCF of numerator values. Please realize the change. LCM के केस में हम पहले LCM फाइंड आउट करते हैं, but SCF के केस में we'll calculate SCF of numerator values. And then for denominator values, you would calculate LCM, LCM of denominator values. I hope you have understood the difference between the two, how to calculate LCM and SCF of the given fractions. Now let us do some practice. Let me show you questions based on these properties. Look at the first question. The LCM and SCF of two numbers are 216 and 6 respectively. If one of the numbers is 24, find the other number. So I have been given with LCM and SCF of two numbers, that is 216 and 6 respectively. If one of the numbers is 24, I have to find the other number. So if you try to recall the properties which I have just shared with you, you would say, sir, we can apply property 2 here. Property 2 says, for any set of two numbers, the product of LCM and SCF, let me write it for you. The product of LCM and SCF is equals to the product of two numbers. You can clearly see we can apply this property. This property is applicable here. So let's plug in the values. LCM is 216, SCF is 6. If one of the two numbers is 24, find the second number or find the other number. So if you solve this, you'd be able to get your answer. So to solve it for B, what you'll do, you'll take 24 to the other side. So it will come in denominator. So 6164, 41454. So the value of B is going to be 54. The value of other number would be 54. It's a simple question. You should not take much time to, find the answer of this particular one. You have to simply apply the property and get your answer. Now let me show you the next question based on the same property, which is very important from the perspective of any examination. Now this question is a little difficult from the previous one, because in this question we have to actually count pair of numbers where LCM is 64 and SCF is 4. तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर तुम लास्ट क्वेश्चन देखते हो तो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा कि हमको LCM एंड SCF की वैल्यू गिवन थी. LCM 216 था और SCF 6 था. कितने नंबर्स के लिए? दो नंबर्स के लिए. तुमको एक नंबर बता दिया और तुमसे पूछा कि बताओ दूसरा नंबर क्या होगा. तुमने बहुत आसानी से कैलकुलेट किया. यू वुड सेड सर सेकंड नंबर 54 होगा. बट एट द सेम टाइम इफ आई आस्क यू, डू यू थिंक कि यही एक ऐसा पेयर ऑफ नंबर है जिसका LCM एंड SCF का आंसर 216 और 6 आएगा? यू वुड से सर कैन नॉट से एनीथिंग. ऐसा भी हो सकता है कि यही एक ऐसा पेयर ऑफ वैल्यू हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऐसे और भी पेयर ऑफ नंबर्स हैं जिनके लिए LCM एंड SCF का आंसर सेम ही रहे, 216 एंड 6. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे हमको पेयर्स काउंट करने हैं. 1 2, how many pairs of numbers exist where LCM and SCF value is 216 and 6? Therefore I have said this question is a little difficult from the last one, but let's see how to approach this question. यहाँ पे LCM का वैल्यू कितना है? 64. SCF का वैल्यू कितना है? 4. और क्योंकि पेयर ऑफ नंबर्स की बात कर रहा है यानी कि हम दो ही नंबर्स की बात कर रहे हैं. दो नंबर्स के ऐसे कितने पेयर ऑफ नंबर्स हैं जहां पे LCM 64 हो एंड SCF is 4. So I'll use the same property. What property? The product of two numbers should be equals to the product of LCM and SCF. Let me plug in the values which we are given with. LCM is 64 and SCF is 4. Now another interesting thing which you should note down, क्योंकि मुझे दोनों नंबर्स का SCF पता है, तो मैं दोनों नंबर्स को यहाँ पे SCF का ही मल्टीपल अज्यूम कर सकता हूँ. What I'm trying to tell you, अगर मैं यहाँ पे दो नंबर्स लिखता हूँ, let's say 8 and 24. इन दो नंबर्स के लिए if I ask you to find out highest common factor, I ask you to find out highest common factor for these two numbers. So let's apply the property. The property of SCF says,
कि एचसीएफ का आंसर या तो सबसे छोटा वैल्यू होगा, सबसे छोटा वैल्यू क्या है 8। 8 कब होगा? इफ 8 कैन डिवाइड द अदर नंबर। क्या 8 24 को डिवाइड कर सकता है? रिमेंबर वी आर फाइंडिंग फैक्टर्स, फैक्टर मतलब जो नंबर्स डिवाइड करते हैं। क्या 8 24 को डिवाइड कर सकता है? द आंसर इज यस, एंड देयरफॉर द आंसर ऑफ एचसीएफ इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू ओनली 8। नाउ इंटरेस्टिंगली, अगर मैं इस 8 को बाहर, इस 8 को बाहर कॉमन लूं, तो इनसाइड ब्रैकेट I would be left with these two numbers 1 and 3. I would be left with these two numbers 1 and 3. अगर तुम 1 और 3 को देखोगे अब, तो 1 और 3 के बीच में 1 के अलावा और कुछ बाहर कॉमन नहीं आ सकता। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर एक बार तुमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर ले लिया, तो उसके बाद ब्रैकेट में जो नंबर्स रह जाएंगे उनके बीच में 1 से बड़ा फैक्टर निकल के नहीं आ सकता। द सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, अगर तुम इन दो नंबर्स को दोबारा देखोगे, तो अभी हमने क्या फाइंड आउट किया कि इन दो नंबर्स का एचसीएफ 8 है। अगर एचसीएफ 8 है और मैं 8 की हेल्प से इन दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो देखो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 इंटू 1 एंड 8 इंटू 3। तो हमने क्या देखा कि अगर मुझे एचसीएफ पता है, तो मैं नंबर्स को एचसीएफ के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई नो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी ये पेयर ऑफ नंबर्स हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 4। तो क्या मैं इन दो नंबर्स को a और b को 4x एंड 4y अज्यूम नहीं कर सकता? नाउ इफ यू थिंकिंग सर ये x और y क्या है यहाँ पे, तो तुमको समझना पड़ेगा ये x और y वो नंबर है जो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा इफ आई टेक आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। So let's plug in the values of two numbers as 4x and 4y. Let's do the calculation then. 4 will cancel this 4 and 4 will cancel out this 64 16 times. So from here you get this relation that the product of these two numbers should be equals to 16. Now what you are required to do, you have to think about all pair of numbers whose product is equals to 16, and to do that we'll use a very elegant approach. तुम्हें याद है कि हम फैक्टर्स किसी नंबर के कैसे लिखते थे? अगर मुझे मैनुअली फैक्टर्स लिखने होते थे, फॉर दैट द फर्स्ट स्टेप वाज मैं गिवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता था। इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना है? 4, और इस 4 को हम अपर लिमिट बोलते थे। तो विल अप्लाई द सेम थिंग हियर। सी, सबसे पहला नंबर जो 16 को डिवाइड कर सकता है, यू वुड से 1। 1 के बाद विल गो टू 2। 2 कैन ऑल्सो डिवाइड। कैन 3 डिवाइड? नो। कैन 4 डिवाइड? यस। और क्योंकि 4 अपर लिमिट है, आई विल स्टॉप एट 4 एंड नाउ इट इज टाइम टू स्विच। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 16 आ जाए? 4। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 16 आ जाए? 8। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 16 आ जाए? यू वुड से 16। So these are the pair of values whose product is 16. So this is how elegantly you can maintain this list. So if you're thinking, क्या सर इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें 3 पेयर्स दिख रहे हैं, तो you need to think a little more before saying that the answer of this question is 3. देखो एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने तुमसे डिस्कस करी थी कि अगर मैं एक बार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल दूं, तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स बचेंगे विच आर एक्चुअली द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो इनके बीच में 1 से बड़ा फैक्टर कॉमन निकल के नहीं आना चाहिए। एक बार अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हटा दूं, तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स बचते हैं विच आर नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, इनके बीच में 1 से बड़ा फैक्टर बाहर निकल के नहीं आना चाहिए। So let us check this important condition as well. तो अगर मैं फर्स्ट पेयर ऑफ नंबर देखता हूं 1 और 16 के बीच में, क्या तुम 1 से बड़ा फैक्टर बाहर कॉमन निकाल सकते हो? द आंसर इज नो, एंड देयरफॉर इट्स एन एक्सेप्टेबल पेयर। व्हाट अबाउट द सेकंड पेयर? क्या सेकंड पेयर में कौन से दो नंबर्स हैं? 2 एंड 8। क्या इनके बीच में 1 से बड़ा फैक्टर बाहर आ सकता है? यू वुड से यस सर। 1 से बड़ा नंबर है जो 2 और 8 दोनों को डिवाइड कर सकता है, दैट इज 2। और क्योंकि मैं यहां से 2 बाहर लेके जा सकता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने ऑलरेडी 4 बाहर कॉमन निकाला हुआ है। 4 वॉज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर मैंने एक बार 4 निकाल लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स होंगे एक्स एंड वाई की वैल्यूज, उनके बीच में 1 से बड़ा नंबर बाहर कॉमन निकल के नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है लाइक इन दिस केस, इट मींस
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आंसर 4 नहीं, 4 into 2, इट्स गोइंग टू बी 8। एसएफ होना कितना चाहिए? 4, लेकिन इस पेयर के लिए कितना आ रहा है? 8, एंड देयरफॉर दिस पेयर विल बी एलिमिनेटेड। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे पेयर्स को हमें एलिमिनेट करना है और कौन से पेयर्स को हमको एक्सेप्ट करना है। हम ऐसे पेयर्स को एक्सेप्ट करेंगे जिनके बीच में 1 से बड़ा नंबर बाहर कॉमन निकल के नहीं आएगा। एंड ऑल सच पेयर्स वेयर आई एम गेटिंग अ फैक्टर मोर देन 1, ऐसे पेयर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। थर्ड पेयर देखो, क्या 1 से बड़ा नंबर बाहर कॉमन निकल के आ सकता है? हाँ, आई कैन टेक आउट 4। तो देखो, एक 4 ऑलरेडी बाहर है, एक 4 तुम और लेके आ गए, तो अगेन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। 4 into 4 16 हो जाएगा, तो दिस पेयर इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। If somebody asks you how many pairs of numbers exist such that LCM is 64 and SCF is 4, you would say only one. The answer of this question is going to be 1. Now if you're thinking कि सर पेयर का तो समझ में आ गया कि एक पेयर है, बट इफ आई हैव टू फाइंड आउट द नंबर कि वो पेयर के नंबर्स क्या हैं, हाउ टू फाइंड आउट दोस नंबर्स? तो इट्स वेरी इजी। सी, तुमने नंबर्स को a एंड b को 4x एंड 4y अज्यूम किया था, तो सिंपली प्लग इन द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्योंकि एक ही पेयर ऑफ नंबर्स है, तो मेरे पास x और y के लिए एक एक वैल्यू है। तो 4 into 1 and 4 into 16 will give you the values of number, which is nothing but 4 and 64. So somebody asks you what are the pair of numbers जिनके लिए LCM 64 and SCF 4 आएगा, you would say वो वही numbers हैं। It means अगर ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1 आया है, try to understand, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 1 आता है, तो वो जो 1 पेयर है ना, वो खुद LCM एंड SCF की ही वैल्यूज होती हैं हमेशा। अगर 1 से बड़ा आंसर आएगा, इसका मतलब LCM एंड SCF के अलावा एक और पेयर है जो मुझे LCM एंड SCF का वैल्यू सेम देगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट मी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन एंड देन थिंग्स विल मेक मोर सेंस टू यू। आई डिस्कस वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टाइप। So this time let's do one thing. Let's take LCM as 216 and SCF 6. My suggestion would be you can try solving this question on your own. So you have to again find the number of pairs where LCM is 216 and SCF is 6. So you can pause the video for some time and then can listen to the solution. So apply the same property. The product of two numbers would always be equals to the product of LCM and S. Since I know SCF is 6, I can assume the two numbers as 6x and 6y. LCM 216, SCF 6. Let's simplify. This is going to be 6 times 36. So now you have to think about pair of numbers whose product is 36. And to do that, I have told you, you have to take square root of 36, which happens to be 6. और 6 क्या है मेरा? upper limit. So I'll start from 1, क्योंकि 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है। Then I'll go to 2. Can 2 divide 36? Yes. Can 3 divide 36? Yes. Can 4 divide 36? Yes. Can 5 divide? No. Can 6 divide? Yes. The moment I reach to 6, since 6 was my upper limit, I have to stop. And now it is time to switch. So let's think in this manner. 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आए? 6. 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 9. 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12. 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 18. And 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 36. These are the pair of numbers whose product is 36. I have written all such pairs. बट क्या ये सारे के सारे पेयर्स एक्सेप्टेबल पेयर्स हैं? उसके लिए हमको एक कंडीशन चेक करनी है। क्या कंडीशन है? वो ही पेयर्स एक्सेप्टेबल पेयर्स होंगे जहां पे 1 के अलावा और कुछ कॉमन निकल के नहीं आएगा। तो 1 एंड 36 में मैं 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं निकाल सकता, इसलिए दिस इज एन एक्सेप्टेबल पेयर। बट इफ यू लुक एट द सेकंड पेयर 2 एंड 18, यहाँ पे 1 से बड़ा नंबर कॉमन आ सकता है, दैट इज 2। क्योंकि अगर मैं यहां से 2 बाहर निकालता हूं, तो तुम समझना 6 एज अ एलसीएम हमने पहले ही बाहर निकाल लिया था, तुम 2 और निकाल के लेके आ गए, तो तुम्हारा एलसीएम का आंसर चेंज हो गया। एलसीएम होना, सॉरी, एचसीएफ का आंसर चेंज हो गया। एचसीएफ होना कितना चाहिए? 6, बट हियर यू आर गेटिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12। तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू कंडीशन, इसीलिए ऐसे पेयर्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं। 3 एंड 12 में, यस, अगेन आई कैन टेक आउट a number greater than 1 outside. 4 and 9, now this is a very important pair, 4 and 9। 4 और 9 में 1 से बड़ा नंबर कॉमन आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 और 9 दोनों को डिवाइड कर सकता है, एक्सेप्ट 1, और 1 तो एक्सेप्टेबल है। सो
This is also acceptable. What about the last pair? No. 6 and 6 में I can take out 6. एक 6 already बाहर है, एक 6 और मैं बाहर लेके आऊंगा. Again it will change the answer of SCF. Not allowed. So how many pairs of numbers exist where LCM is 216 and SCF is 6? You would say so there are two such pairs. So in order to find out the pair of numbers, what you need to do, you just maintain a table. You would say हमने जो दो numbers हैं A and B, उनको क्या assume किया है? We have assumed them as 6x and 6y. तो अगर तुम फर्स्ट पेयर ऑफ वैल्यू पिक करते हो तो यहां पे x का वैल्यू कितना है 1 एंड y का वैल्यू कितना है 36. so this will give you the first pair of numbers. In order to get the second pair of numbers, तो देखो सेकंड पेयर में x एंड y का वैल्यू कितना है 4 एंड 9. so when you do this calculation you get to know कि वो कौन से दो पेयर ऑफ नंबर्स है. फर्स्ट पेयर ऑफ नंबर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक पेयर तो हमेशा खुद एलसीएम एंड एचसीएफ का वैल्यूज ही होगा. एलसीएम कितना था 216, एचसीएफ कितना था 6, तो एक पेयर तो हमेशा होगा. यानी कि इस क्वेश्चन का जो लीस्ट पॉसिबल आंसर है वो 1 है. इससे छोटा आंसर इस क्वेश्चन का नहीं आ सकता. और जो सेकंड पेयर निकल के आया दैट इज 24 एंड 54. 6 4 24 and 6 9 54. So I hope through this explanation you were able to understand how to find out pair of numbers where LCM and HCF values are given. So this is all in this particular video lecture. I hope you have enjoyed this session. If yes, please like, share and subscribe, and also share this video with your friends if you find it helpful. So with this, let's close the session. Thank you and have a nice day.